Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Knowledge is infinite. So where to begin, where to end? It's infinite, infinite. Hare Ram. Well, let me share with you what is Vipassana. What is Vipassana? We all go for courses in Vipassana. It's a 7 to 10 days course, or whatever number of days. But what do they teach you? Vipassana is from Vipakshana, is to be able to see. As Sri Ravi Shankar ji calls it, Sudarshan, to be able to see. So that means to say we don't know how to see. In spite of all the ophthalmologists and opticians, we don't know really how to see. So they teach you how to see. And how do they teach you? You're forced to sit quietly. No phones, no books, no talking. Just be. For day after day, for days together. Like we in our satsang sit together quietly for 15 odd minutes. But 15 odd minutes is not actually enough in itself to quieten your mind, quieten your thoughts. What will happen in this quietening, in this silence? What is silence? It's emptiness. You'll be able to experience your emptiness. Your emptiness. Because you are filling it up life after life, day after day, year after year. You are filling it up with noise of knowledge. Knowledge is also called Vedas, but knowledge, be it material knowledge, be it spiritual knowledge, whatever knowledge, you keep filling it up always, all the time. Even sleep, you want to fill it up with dreams. You've not learned to be silent. Not only by the mouth, because primary school teachers know how to tell the children silence. So, finger on your lips. So, we don't learn this finger on the lips. So, we have to go to Vipassana course. So, they force you day after day. You are sitting quietly, not just sitting, doing everything, eating, gardening, whatever you want to do. But you are silent. You're not allowed to speak. So there's a possibility, potential possibility. It might be, it might not be. People keep doing these courses time and again, but nothing really happens. But well, there's a possibility that you might be able to experience your silence. Silence means emptiness. You experiencing your own emptiness. And your beloved is only wanting your emptiness. The moment you become empty, he fills it up. Your beloved, whom you call Jesus, whom you call Mata, whom you call Nanak, whatever you may call it, whom you call Krishna, he'll fill it up. Moment you accept that I am empty, in spite of everything, I'm empty. In spite of everything, life after life, I'm empty. Who are you? Where are you? Help me. Moment you say it, you are experiencing your own emptiness. That becomes Vipassana. Immediately, blessings start pouring upon you. Because your beloved is also empty without you. When you both meet, कितने हंसी आलम हो जाते, हम और तुम, मैं और तुम अगर हम हो जाते. Moment your emptiness meets his emptiness, you become full and filled. That is called Sudarshan.
And this Sudarshan is such a chakra. It's a Brahma Vritti. This can open the eyes of anyone in the world. This is Sudarshan Chakra, which Krishna wields on his one finger. Can open any eyes. Any eyes which are willing to open, he'll open it. So Guru, Satya Sai Baba, Bhagwan, he wields that Sudarshan. Sri Sri Ravi Shankar Ji. Any Guru, he wields a Sudarshan Chakra. He forces you to be quiet. No more knowledge. No more knowledge. Experience your own quiet, your emptiness. And he will fill it up. When you will get tired of what? Not of people, not of work, not of honors, not of anything else, but tired of noise and say, you know, the most scary thing in this world, Yamraj, is noise. And someday you will say, I don't want this anymore. बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेख। मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू है त्याया। Guru, the day you say, I want you. And that day, what will be that day? When you would have experienced your silence. So that is Vipassana. Vipakshana. अंदर की आंख से देख सकना. हरे कृष्णा. दृक दृष्टि से देख सकना. दृक. कैथोलिक हो जाना, क्रिश्चियन बन जाना. दृक दृष्टि मीन्स यूनिवर्सल विजन, जिसमें सब कुछ लाइट ही दिखे. कैथोलिक मीन्स यूनिवर्सल, नो वॉल्स. Whole world, whole Brahman is only light. Hare Krishna, Hare Krishna. Then you become a Paramahansa. This is a Paramahansa. Then your feathers and then your wings are always dancing. Sada Vasantam, Hridayarvindam, Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Hare Krishna, Hare Krishna. Then Nam will enter you. You know, one of the last paudis of Guru Granth Sahib, the most modern of gurus, the most current guru is Guru Granth Sahib. Bhagavad Gita is far old, far, far old. Ramayana is still lakhs of years old. The most current one, 400-500 years back, the most modern guru is Guru Granth Sahib. It says, Tera kita jato nahi, mainu jog kito hai. मैं निर्गुण्यार गुण नाही, आप पे तरस पे हुई. तरस पिया मेरा मत होई, सतगुरु सज्जन मेरे. मेरे में ये गुण तो नहीं था, पर पता नहीं कैसे मेहर हो गई, मुझे गुरु मिल गया. अपने आप ही मिल गया, मैंने तो कुछ किया नहीं और ना ही काबिलियत थी, बस सडनली मिल गया. और गुरु मिला तो हुआ क्या फिर? नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वह हरिया. मैं खिल गया नाम से. अब नाम की वेट करते रहते हैं हम. पहले तो गुरु ढूंढते हैं, फिर गुरु को कहते हैं मेरे को नाम दे दे. कई गुरु बड़े काइंड हैं, शुरू शुरू में ही दे देते हैं. शुरू में ही दे देते हैं. अब देते हैं आपके कान में, कहते हैं किसी को बताना मत. ऐसे ही देते हैं गुरु नाम. और कई लोग वेट ही करवाते रहते हैं, नाम ही नहीं देते. आप समझते ही नहीं कि नाम क्या होता है. कोई ना कोई नाम तो ऑलरेडी आपके पास है ही, फिर कौन सा नाम ढूंढ रहे हो? है नहीं क्या नाम?
कोई जॉन, पीटर, राम, श्याम, कुछ ना कुछ तो नाम ऑलरेडी है. सो व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? वेल, गुरु आपको बोल देता, कान में बोल देता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. तो आप वो बोलना शुरू कर देते हो, हरे कृष्ण. उसने तो बोला था कि किसी को बताना मत. चलो ठीक है, आप अकेले में बैठ के नाम जपना शुरू कर देते हो, बोलते रहते हो अकेले बैठ के. गुरु ने नाम दिया हुआ है, आप बोलते रहते हो. माला भी जपना शुरू कर देते हो, साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम. क्योंकि साई राम, उसने नाम तो नहीं दिया था मगर आपने ले लिया. भगवान सत्य साई बाबा नाम वाम नहीं देते किसी को. वेल, आप फिर भी ले लेते हो, साई राम साई राम साई राम. या फिर आप बोलते रहते हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण. मगर अगर आपका नाम जॉन है, तो आप क्या सारा दिन बोलते रहते हो जॉन 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 जॉन? नहीं बोलते हो. आपका नाम है जॉन. So why should you keep all the time reciting John, John? Isn't it? It's illogical. So अगर उन्होंने आपको नाम कान में दे भी दिया आउट ऑफ काइंडनेस, क्योंकि आप नाम मांग रहे थे, उन्होंने बोल दिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा. सो आप बोलना शुरू कर देते हो हरे कृष्णा. और राम राम करता जग हुआ, सारी उम्र करते रहो. और सदियों से लोग कर रहे हैं, पर बात तो किसी की बनी नहीं आज तक. सो जान लो कि ऐसे तो बनने नहीं वाली बात. और गुरु ग्रंथ साहिब बोलेंगे, गुरु नानक बोलेंगे, मरने की बात कही ना जाए, जाको कहे पीछे पछताए. वो तो बोलते हैं जो मान लेगा नाम को, उसकी तो बस, वो तो अदर वर्ल्ड ही बन गया. वो तो आदमी रह ही नहीं गया. मरने की बात कही ना जाए, जाको कहे पीछे पछताए. सो फिर कैसे, डाइकोटमी क्या है, समझ कैसे आए कि क्या करें? पहले तो हम गुरु मांगते रहते हैं, गुरु मिल गया. फिर उससे नाम मांगते रहते हैं, बाई चांस किसी दिन दे भी दिया उसने, हम नाम जपते रहते हैं. मगर बात तो बनती नहीं, क्योंकि मानते तो है ही नहीं. जॉन को नाम दे दिया हरे कृष्ण, तो मतलब है अब मेरा नाम जॉन नहीं है, अब मेरा नाम हरे कृष्ण. इजंट इट? अभी तो आपका नाम बदल गया. आप वो तो रह ना गए जो पहले थे. अभी तो आपका नाम ही कृष्णा हो गया. बस बताना मत किसी को कि मैं कृष्णा हूं. अगर मान लेना कि मैं कृष्ण हूं, बताना मत, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होंगी. वाई गेट इनटू कंट्रोवर्सीज? अगर आपके कान में बोल दिया गया कृष्ण, ये नहीं हो रहा तुम कृष्णा हो. आपने नाम मांगा, भगवान गुरु ने बोला कृष्ण हो, तो कृष्ण. तो आप अब मान भी लो ना कि मैं कृष्णा हूं. आपको ही तो नाम दिया ना, आप ही तो चाहते थे नाम लेना. आप साईं राम हो अब. बताओ मत लोगों को कि मैं सत्य साई बाबा हूँ. वे ऐसे अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में पड़ोगे. मगर आपको तो पता चल गया कि आप साईं राम हो. अब अब तो कंट्रोवर्सीज खत्म हो गई. मगर अगर आप तो साईं बाबा की भी डेथ एनिवर्सरी मनाते हो, तो फिर तो आपकी भी डेथ एनिवर्सरी होगी ही किसी दिन. तो साईं बाबा थोड़ा मरने वाली चीज थोड़ा है, वो तो भगवान है. कृष्णा को भी मरते हैं. तो आप तो कृष्णा हो, आप तो साईं बाबा हो. आप मर तो सकते नहीं. ना किसी की कोई डेथ एनिवर्सरी होती है, ना आपकी है, ना आपकी कोई बर्थडे है. क्योंकि भगवान ना कोई जन्म लेता है ना मरता है. सो आपको तो बता दिया गया, कान में नाम दे दिया कि आप भगवान हो. बस अब चुप कर जाओ. उसके बाद तो कुछ बोलने को रह नहीं जाता, क्योंकि आप तो साइलेंस हो. दो साइलेंट चीजें मिल गई. अब तो बस सारे भरम दूर हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते. मनने की बात अंदर से मान लो, ऐसे ही बोलते मत रहो मेरे को नाम दे दो. भाई नाम मिल गया तो फिर बात तो खत्म ही हो गई. फिर उसके बाद जब नाम ही मिल गया, तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा. फिर आप कुछ भी बोलो, अल्लाह अकबर. अल्लाह भी आप ही हो, मोहम्मद भी आप ही हो, जीसस भी आप ही हो, क्राइस्ट भी आप ही हो, आनंदमयी माँ भी आप, अमृत आनंदमयी भी आप,
श्री श्री रविशंकर भी आप ही। फिर तो सब कुछ आप ही हो, क्योंकि आप भगवान हो। आपको नाम मिल गया। अब किस बात की चिंता। परमानंद है अब तो। बट चाहिए क्या था? क्वाइट। आप क्वाइट होने नहीं देते अपने अंदर। उस क्वाइट में भी कुछ ना कुछ करते रहते हो, गुड़ 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 गुड़, करते रहते हो कुछ ना कुछ। क्वाइट हो जाने दो अपने आप। कोई महापुरुष हाथ उठाएगा तो आपको लगेगा ब्लेसिंग मिल गई। अरे वो आपको बता रहा है मैं खाली हूं, बिल्कुल मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और वो भी आप है। आप भी खाली हैं। जब खाली खाली मिल जाएंगे दो, तो दो दिल मिल बैठे। दो दिल मिल बैठे, तस्वीरें ना मिलियां। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। फिर छुपाई ना जाएगी इसके अंदर की मस्ती। इन आंखों से अयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती। ये मोहब्बत है, ये मिलन है। ये मिलन की मस्ती है। लावा। लावा मतलब लावा मिल जाना। लावा इश्क दे अंबरी उडारियां। मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। अब मेरे पैर नहीं जमीन उते लगदे। ਲੱਖਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ। ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ। ना गल मेरे बस दी रही। जब मोहब्बत हो जाएगी, तब अपने आप ही पूछोगे क्या हो गया है। पता नहीं क्या हो गया है। क्योंकि फिर वो दिमाग से परे होगा ना। तो इसलिए कौन बताए अब। मैंने देखा है तुझको नजरों से। तेरी तारीफ हो मगर कैसे। ना जुबान को दिखाई देता है। तारीफ तो जुबान करेगी ना, जुबान ने तो देखा नहीं। जुबान कैसे बताए। और ना निगाहों से बात होती। सो मोहब्बत कैसे बयां की जाए। ये तो निगाहों से बयां होती। ये हकीकत है जो निगाहों से बयां होती। चुपचाप आपकी मस्ती से पता चलेगा कि ये क्या है। मिलन की मस्ती भरी आंखों में। हजारों सपने सुहाने लिए चला जाता हूं किसी की धुन में। किसकी धुन में? ये नहीं पता, मेरे को खुद ही नहीं पता, मैं बताऊं क्या। मतलब आप बोलेंगे कि मेरे को नहीं पता क्या हुआ है। कोई पूछेगा क्या हो गया तुमको। आई डोंट नो क्या हो गया। कुछ तो हो गया है। हाँ कुछ तो हो गया है। वो क्या हुआ है पता नहीं। बात बन चुकी होगी आपकी बस। प्राप्य प्राप्ता। बस वो है विपासना। एक बार अपनी एम्प्टीनेस एक्सपीरियंस तो करके देखो। इमीडिएटली इट विल बी फिल्ड। हरे राम। वो भी तो वेट कर रहा है कि आप मान जाओ क्या। और मैं एक है। वेट कर रहा है कि आप मान जाओ कि ये सब भ्रम है। जो मैं कहता हूं कि ये मेरे पापों का फल है। ये तो जी संस्कार है। ये सब इमेजिनेशन है। ये सुपना। सोवत नहीं जानने। अचेत व्यवस्था में लपटाने। ये सपना है। जाग जाओगे तब पता चलेगा कि ये सब संस्कार, ये कर्म, ये पाप, ये पुण्य, ये सपना थे। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताएं वो क्या था। सपना सुहाना था। सपना सलोना था।
खत्म तो होना था। जब खत्म हो जाएगा तो आप जागृत हो जाएंगे, मस्ती में ही रहा करेंगे बस। मरेंगे नहीं, ऐसे फिर तो कभी भी नहीं मरेंगे ना, फिर तो आप अमृत हो जाएंगे आप। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवे। फिर तो आप अमृत हो जाएंगे, क्योंकि आपको नाम मिल गया। अभी तो आप पता चल गया कि मैं कौन हूं। बस बात बन गई। जो सिमरे, सिमरना का मतलब कट 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 बोलते रहना नहीं है। सिमरन का मतलब मैं थोड़ा सारा दिन अपना नाम लेता रहता हूँ। भूल मेरा नाम है तो जो है, लेने की क्या जरूरत है ना। बस आप चुप हो जाओ, विपासना का कोर्स करो अपने ही घर में, जहां बैठे हो वहीं। कुछ दिन, कुछ पल, सब कुछ पढ़ना वढ़ना बंद करके चुपचाप